Hi students, I'm Shivani Sharma from Pathway Academy. I'm again before you with my new video. The topic of my video is to build a fire. This chapter is included in ICSE board in grade plus 2. If you like my video, then hit the bell icon and subscribe my channel. Before starting the chapter, I would like to tell you about the writer. The writer of this chapter is Johann Griffin London. He was an American novelist, journalist, and social activist. He was one of the first writers to become a worldwide celebrity and earn a large fortune from writing. He was also an innovator in the genre that would later become known as science fiction. His most famous work include The Call of the Wild and White Fang, both set in the Klondike Gold Rush, as well as the short stories To Build a Fire and Odyssey of the North and Love of Life. He also wrote about the South Pacific in stories such as The Pearls of Parley and The Heathen. London was part of the radical literary group The Crowd in San Francisco and a passionate advocate unionization, workers' rights, socialism, and eugenics. He wrote several works dealing with these topics, such as his dystopian novel The Iron Heel. His non-fiction exposed the people of the abyssal war of the classes and before Adam. Introduction: To Build a Fire is the story of a young miner who has come to the Yukon to find gold. ये कहानी जो है एक यंग माइनर की है जो कि यूकॉन के अंदर गोल्ड को फाइंड करने के लिए आता है. He is traveling towards his camp on a cold windy afternoon against the advice of a seasoned miner. वो उसको एक पुराने जो सीजन माइनर होता है, जो खानों में काम कर रहा व्यक्ति होता है, वो उसको नसीहत भी देता है और हिदायत भी देता है कि आप इस रास्ते से मत जाइए, लेकिन वो उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता. वो उसके अगेंस्ट वो अपने कैंप की तरफ ट्रैवल करता है जबकि बहुत ही तेज और ठंडी हवाएं चल रही होती हैं. He falls through some ice and gets his feet wet, necessitating building a fire to dry off and warm up. वो कुछ बर्फीली जगहों से निकलता है और वहां पर -50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है. ये वो समझता है कि ये -50 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर -75 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से वो इतना वेट हो जाता है कि उसका ठंड की वजह से उसके हाथ पैर बिल्कुल नम हो जाते हैं. नेसेसिटेटिंग बिल्डिंग अ फायर टू ड्राई ऑफ एंड वार्म अप. तो ऐसी सिचुएशन में उसके वेन्स के अंदर ब्लड भी जमने को हो जाता है, तो उसको जरूरत महसूस होती है कि कैसे ना कैसे करके मैं आग जला लूं और अपने आप को थोड़ा वार्म अप करूं. अनफॉर्चुनेटली हिज फायर फेल्स. बदकिस्मती से उसकी आग जो है वो जल नहीं पाती एंड द मैन एंड्स अप फ्रीजिंग टू डेथ. और वो जो आदमी होता है एकदम ठंड की वजह से वो अपने प्राण त्याग देता है. When it is clear he is dead, his dog deserts him. जब ये स्पष्ट हो जाता है कि ये आदमी मर चुका है, तो उसका कुत्ता उसको डॉग उसको वहीं पे छोड़ के भाग जाता है, heading for the warmth and food for the mining camp. वो एकदम भोजन और अपने आप को वार्म अप करने के लिए जो वहां पर माइनिंग कैंप लगा होता है
उसकी तरफ भाग जाता है। Now let us begin with the summary of the chapter. To build a fire. To build a fire is naturalist short story by Jack London, which follows an unnamed man and a dog as they hike through the bitterly cold forest along the Yukon River in Canada. ये कहानी जो है एक नेचुरलिस्ट शॉर्ट स्टोरी है, जैक लंडन के द्वारा लिखी गई, which follows an unnamed man. इस कहानी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसका कोई नाम नहीं रखा गया। वो एक अपने जो बर्फीले इलाकों में डॉग होते हैं उसके साथ वो एक माइनिंग कैंप की तरफ जाता है। एज दे हाइक थ्रू द बिटरली कोल्ड फॉरेस्ट, जैसे ही वो घने बर्फीले ठंडे जंगलों में से गुजरते हैं, अलोंग द यूकॉन रिवर इन कनाडा, कनाडा के यूकॉन रिवर के साथ साथ, तो वो जिन सिचुएशंस का, जिन प्रॉब्लम्स का ठंड की वजह से सामना करते हैं, वो इस कहानी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया गया है। द स्टोरी टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ वन डे। ये कहानी जो है पूरे एक दिन की कहानी है। इट बिगिंस एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। ये कहानी जो है सुबह के 9 o'clock स्टार्ट होती है। When the man stands overlooking the trail, estimating that he will arrive at camp at 6 o'clock that evening. वो आदमी जो है रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ, पगडंडी के ऊपर खड़ा हुआ, ये एस्टिमेट कर रहा होता है कि मैं अपने कैंप के अंदर शाम के 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। He continues to walk towards his destination and is unbothered by the cold. वो अपनी यात्रा जो है अपने डेस्टिनेशन की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ जारी रखता है और वो ठंड का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। उसको ठंड की कोई भी चिंता नहीं होती। Which unbeknownst to him has reached -7 degree Fahrenheit. उसको ये नहीं पता होता कि ये ठंड जो है -75 डिग्री तक पहुंच चुकी है। द कोल्ड वरीज द डॉग हु सेंसेस डेंजर। इतने ठंड की वजह से डॉग को चिंता होने लग जाती है और उसको आने वाले खतरे का आभास होने लगता है। दे मेक देयर वे टू अ डिवाइड इन द स्ट्रीम वेयर द मैन हैज डिसाइडेड ही विल ईट हिज लंच। वो एक स्ट्रीम की तरफ अपना रास्ता करते हैं, उसकी तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। वहां पर जाकर वो आदमी ये सोचता है कि मैं यहाँ पर बैठकर अब अपना लंच करूंगा। ऑन द वे ही इज केयरफुल टू द टेस्ट द आइस ही इज वॉकिंग on in case it is thin and causes him to fall through into the freezing water. पूरे रास्ते में वो बहुत ही ध्यान से चलता हुआ आता है, आइस को टेस्ट करता हुआ, क्योंकि उसको ये होता है कि मैं कहीं इस फ्रीजिंग वाटर के बीच में गिर ना जाऊं, इसलिए वो बड़े ही ध्यान से चलता है। एट वन पॉइंट ही मेक्स द डॉग वॉक अहेड टू टेस्ट द आइस। एक रास्ते पे जाकर वो अपने डॉग को आगे आगे दौड़ाता है आइस को टेस्ट करने के लिए। पुशिंग इट फॉरवर्ड व्हेन इट हेजिटेट्स। वो उसको आगे की तरफ धकेलता है जबकि वो डॉग जो है थोड़ा आगे जाने में हिचकिचाता है। वो राइटर जो है डॉग को इसलिए आगे धकेलता है कि ये आइस सॉलिड है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेल्ट हुई हो नीचे से और वो एकदम पानी के अंदर ना गिर जाए। द डॉग फॉल्स थ्रू। वो डॉग जो है रास्ते पे गिरता जाता है। एज द मैन हेल्प्स द डॉग टू रिमूव द आइस फ्रॉम इट्स पॉज। वो आदमी जो है डॉग को उसके पॉज से, पंजों से बर्फ को हटाने में हेल्प करता है। He is surprised to notice that his own hands are numb. वो जब ये देखता है कि उसके अपने हाथ ही बिल्कुल सुन्न हुए पड़े हैं, तो वो ये नोटिस करके एकदम हैरान हो जाता है and hits them against his legs to restore feeling in them. और उनको
अपनी लेग्स के साथ जोर जोर से मारता है, वो इसलिए मारता है कि वो ये महसूस करना चाहता है कि उसके हाथ जो हैं उसकी बाजुओं के साथ लगे हुए भी हैं या ना, वो उनको महसूस करना चाहता है। एट 12:30, 12:30 का टाइम होता है। दे अराइव एट द क्रीक्स डिवाइड एंड स्टॉप टू ईट लंच। वो जहाँ पर रास्ता डिवाइड होता है वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां पर लंच करने के लिए रुकते हैं। एंड वार्म देमसेल्फ बाय अ फायर। और राइटर ये सोचता है कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी आग जलाकर थोड़ा वार्म अप हो जाऊं। द मैन थिंक्स बैक टू हाउ ही हैड laughed when being warned about the cold temperature of the region, but he doesn't dwell on the coldness. वो आदमी दोबारा सोचता है कि वो कैसे हंसता था जब उसको ये वार्न किया गया था कि इस रीजन की तरफ आप मत जाइए, यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा कोल्ड है। लेकिन उसने इस बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने ये सोचा कि मैंने कौन सा वहां पे जाकर रहना है। As he sets off once again to resume the hike, वो जैसे ही अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए दोबारा खड़ा हुआ, the dog is reluctant to leave the warmth of the fire. डॉग जो है वो इस आग की वार्मथ को छोड़ने में थोड़ा झिझकता है, वो वहां से जाना नहीं चाहता। आफ्टर अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग आधे घंटे की यात्रा के बाद, द मैन सडनली फॉल्स थ्रू आइस। वो आदमी जो है वो अचानक बर्फ के बीच में से गिरता है, विच सोक्स हिम एंड अप टू हिज नीज, जिसकी वजह से वो घुटनों के बल एकदम बैठ जाता है। ही डिसाइड्स टू बिल्ड अनदर फायर टू ड्राई हिमसेल्फ। वो एक बार फिर से दोबारा आग जलाना चाहता है क्योंकि वो अपने आप को अब ड्राई करना चाहता है। ही वर्क्स केयरफुली। वो बड़े ध्यान से काम करता है, aware that he must succeed on his first try or risk losing his fingers and toes to the frost. उसको ये पूरी तरह इस बात का ज्ञान होता है कि अगर मैं ये आग जलाने में असफल रहा तो हो सकता है मेरी या तो हाथ या पैर की फिंगर्स जो है वो मेरी मैं खो सकता हूँ। वंस द फायर हैज स्टार्टेड, एक बार अगर आग शुरू हो जाती है, ही बिगिंस टू रिमूव हिज शूज, तो वो अपने जूते उतारेगा। सडनली अ ब्रांच अबव हिज हेड मूव्स। अचानक जैसे ही वो अपने शूज रिमूव करना चाहता है तो एक ब्रांच जो है ऊपर से मूव होती है और धीरे धीरे स्नो मेल्ट होकर जल रही आग के ऊपर गिरना शुरू स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रॉपिंग स्नो ऑनटू द फायर एंड एक्सटिंग्विश्ड इट, जिसकी वजह से आग जो है वो बुझ जाती है। ही berates himself for being so foolish. वो अपने आप को जोर से डांटता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ। As to build a fire directly under a tree, कि मैंने एकदम पेड़ के नीचे ही आग जला दी। And he starts to build a new fire in an open space. वो दोबारा फिर एक नई आग जलाना चाहता है एक खुले ओपन स्पेस के अंदर। While gathering the new material, जब वो नई लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जाता है, the man's hand grow increasingly numb. तो उस आदमी के हाथ जो है बिल्कुल पूरी तरह से सुन्न हो चुके होते हैं। Realizing that he cannot grasp pieces of bark to start the fire, उसको एकदम से ये एहसास हो जाता है कि मैं आग जलाने के लिए लकड़ियों के टुकड़े नहीं ले सकता। He starts to swing his arms and eventually regains some feeling in his fingers. तो एकदम से उसकी बाजुएं जो हैं झूले की तरह ऐसे लटक कर झूलने लग जाती हैं। Eventually regains some feeling in his fingers, जिसकी वजह से उसको अपनी फिंगर्स के अंदर थोड़ा महसूस होता है कि मेरी फिंगर्स जो है मेरी बाजू के साथ लगी हुई हैं। इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स हिम टू टेक आउट अ पैक ऑफ मैचेस फ्रॉम हिज पॉकेट। बहुत ही थोड़े समय में वो अपनी पॉकेट में से माचिस की
तीलियां निकालता है। His bare hands become numb again. उसके नंगे हाथ जो होते हैं एकदम सुन्न हो जाते हैं। And he accidentally drops the whole pack into the snow. और एकदम उस एक्सीडेंटली पूरे का पूरा जो पैक होता है उसका, तिल्लियों का, माचिस का, वो बर्फ के ऊपर गिर जाता है। नाउ अवेयर ऑफ द डेंजर ही फेसेस एज ही बिकम्स इंक्रीजिंगली कोल्ड। अब उसको आने वाले खतरे का पूरी तरह से आभास हो जाता है कि ठंड जो है वो एकदम से बढ़ती ही जा रही है। द मैन केयरफुली मैन्योवर्स द मैचेस इनटू हिज हैंड्स। वो आदमी जो है एकदम पूरी तरह से कोशिश करके उन माचिस की तीलियों को अपने हाथों में लाने की कोशिश करता है। एंड मैनेजेस टू गेट अ सिंगल मैच बिटवीन हिज टीथ। और वो किसी न किसी तरह से एक माचिस की तीली को अपने टीथ के बीच में पकड़ने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। आफ्टर ड्रॉपिंग द फर्स्ट वन, जब एक उससे छूट जाती है, ही ड्रैग्स अनदर अक्रॉस हिज लेग। तो वो दूसरी को अपनी टांगों के साथ खींचता है। एंड सक्सीड्स इन लाइटिंग इट आफ्टर मच एफर्ट। और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद उसको जलाने में कामयाब हो जाता है। होल्डिंग द मैच अप टू द ट्री बार्क। वो माचिस की तीली को ट्री बार्क तक पकड़ते हुए, द स्मेल ऑफ द स्मोक गोज अप। उस धुएं की जो स्मेल है ऊपर तक जाती है उसके नाक तक। एंड कॉजेज हिम टू कफ एंड ड्रॉप द मैच इनटू द स्नो। जिसकी वजह से उसको कफ हो जाती है और पूरी की पूरी माचिस की तीलियां जो है बर्फ के ऊपर गिर जाती हैं। ड्रॉइंग द होल पैक अगेंस्ट हिज लेग। वो पूरे का पूरा माचिस की जो डिब्बी है उसको अपनी लेग्स के साथ खींचता है। ऑल 70 मैचेस सडनली लाइट एट द सेम टाइम। पूरी की पूरी जो 70 तीलियां होती हैं एकदम जल जाती हैं। एंड स्टार्ट टू बर्न हिज हैंड। जिसकी वजह से उसके हाथ जो है वो जलने शुरू हो जाते हैं। द मैन एंड्योर्स दिस। वो आदमी जो है ये सब सहन करता है। With numb hands he tried to protect the fire from pieces of moss, and in so doing he actually extinguished the fire. अपने नंगे हाथों से वो उसको आग से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते करते उससे आग के ऊपर काई गिर जाती है, जिसकी वजह से आग जो है वो बुझ जाती है। Seeing the dog, a crazy idea stuck in his mind. अपने डॉगी को देखकर एकदम उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा विचार आता है। He had heard of a man who survived a winter storm by killing a bull and crawling inside the carcass for the warmth. He had heard of a man. उसने एक ऐसे आदमी के बारे में सुना है who survived a winter storm by killing a bull, जिसने एक बर्फानी तूफान का सामना किया था अपने बुल को मारकर, और उसकी डेड बॉडी के अंदर, उसकी खाल के अंदर खुद को छुपाकर उसने वार्मथ ली थी। He thought of killing the dog and warming his hand inside its body. उसने ये सोचा कि मैं अपने डॉग को मारकर अपने हाथों को इसकी बॉडी के अंदर डाल के हीट अप कर लूंगा। The man caught the suspicious dog somehow. उस आदमी ने कैसे न कैसे करके उस डॉग को, संदिग्ध डॉग को पकड़ा, but realized that as his hands were too numb to hold a knife. लेकिन उसको ये महसूस होने लग गया कि उसके हाथ इतने सुन्न हो चुके थे कि वो चाकू नहीं पकड़ सकता था, और चाकू ना पकड़ने की वजह से he could not kill it, वो उसको मार नहीं सकता था। So he let the dog go. इसलिए उसने डॉगी को जाने दिया। The man became panicky as he realized that he could not escape death. वो आदमी एकदम दुख से भर जाता है जब उसको पता चलता है कि अब मैं मौत से नहीं बच सकता। Frostbite was now little worrisome. अब ये जो कोहरा और बर्फ थी, ये अब उसके लिए चिंता का कारण बन गई थी। He started running along the creeks. वो एकदम पगडंडी के साथ दौड़ना शुरू कर देता है, with the dog at his heels.
और साथ ही उसका डॉग भी। ही फेल्ट गुड एट फर्स्ट। सबसे पहले तो वो अच्छा महसूस करता है। वो दौड़ना इसलिए शुरू करता है कि दौड़ने से जो है थोड़ी हीट प्रोड्यूस होएगी और उसकी बॉडी वार्म अप होएगी। पहले तो उसको अच्छा महसूस होता है, बट देन ही लॉस हिज स्टेमिना। लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो थक जाता है। ही फेल एंड कुड नॉट राइज। वो गिर जाता है और उसके बाद वो उठ ही नहीं पाता। ही गॉट अप अगेन एंड स्टार्टेड रनिंग। वो दोबारा खड़ा होता है और दौड़ना शुरू कर देता है। अगेन ही फेल। वो दोबारा गिरता है। देन ही सैट क्वाइटली। फिर वो चुपचाप बैठ जाता है एंड डिसाइडेड टू मीट डेथ विद डिग्निटी। और फिर वो पूरी शानो शौकत के साथ मौत का सामना करता है और मरना पसंद करता है। He had been running recklessly rather than accepting the inevitable. वो एकदम तेजी से दौड़ता ही जाता है। वो एकदम मौत को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका पूरा डट के सामना करता है। He imagined his friends finding his body tomorrow. उसको एकदम ये लगता है कि कल मेरे दोस्त जो हैं मेरी डेड बॉडी को ढूंढेंगे। He fell off into a comfortable sleep. इसके बाद वो एकदम आराम से नीचे गिर जाता है और सो जाता है। हमेशा हमेशा की नींद सो जाता है। As the night came, जैसे ही रात आती है, the dog detected death in the man's scent. तो वो उसका जो डॉगी होता है उसको आभास हो जाता है कि ये जो मेरा साथी है वो मर चुका है। इट रैन अवे इन द डायरेक्शन ऑफ द कैंप। वो डॉग जो है कैंप के डायरेक्शन की तरफ दौड़ के जाता है। वेयर इट वॉज होपफुल ऑफ गेटिंग फायर। वहां पर उसको ये उम्मीद हो जाती है कि मुझे वहां पे फायर आग मिल जाएगी और एंड फूड फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग्स, और दूसरे लोगों से खाने को भोजन भी मिल जाएगा। नाउ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। One of the themes of the story, to build a fire, is a man's struggle against the forces of nature. Discuss it with reference to the story. Number two, what do you think is the message that the writer wants to convey in To Build a Fire? Meant on the title of the story, To Build a Fire, describe the various challenges and difficulties faced by the man on his way to the base camp to meet his friends. Number 5. How does the man undertake an absurd journey out of his overconfidence and rashness? What happens to him in the end? Thank you.